Go. Good evening to all of you who are watching this. I hope you had a wonderful start of the year. And I'm sorry if you are a Manchester United fan or a Chelsea fan, which happens to be my dear friend Jabad. So, how is the start of your new year, brother? If you are asking personally, I would have give you some other answer. But since we are in the topic of football related footballing world, I am absolutely devastated. There is no passion, no aggression. This reminds me of the peak angry rantman years, what he had to face with this club. I think I'm going in that direction. I'm totally devastated. Can't even tell. I can't even shout right now because what's good it's gonna do. But Uh-huh. you can I am not even exaggerating. You can just know what I'm going through. You can like understand Yes, what I I want to tell. understand. I'm seriously today I'm not even in a mood of doing this, but it is what it is. We Mhm. have to move on. So yeah, it's very like I don't know what say this club should I keep any hope. मुझे पता नहीं कि अब क्या उम्मीद रखना चाहिए कि हम बस खुश होने के एक दो मैचेस में या फिर इससे उम्मीद रखें कि कुछ करे अपना टीम या फिर do we need to start treating this club as a mid-table club? I don't know. There is lots of question today in my mind, but I would like you to take the lead, bro, and just go on with the stream. Indeed, I think you will be far too emotional to do anything today. Absolutely, absolutely. But as one of our seniors in this field, Marka once said, in a battle of clowns, the winner is always a clown. And the And loser is those two clowns so happen to down. be Chelsea and Manchester United, both Unfortunate. sitting at the fifth and the sixth position, tie on the points, and goal difference separating them. They both had great runs, bad runs, but suddenly taking out both the managers to take out the to actually throw the stability of the club into the bin is idiotic in my eyes. Though we both troll Arsenal a lot because of their unruly fans, but you have to give credit where it's due. The Arsenal management trusting in Arteta for so many years has at least brought some sort of stability in the club where you can be pretty sure of how it's gonna happen at the end. Won't you agree? यस ब्रो मैं यही बोलूँगा कि अगर आर्टेटा का जगह तुम्हें ही आर्सेनल का कोच रख देते 5-6 साल तक विथ फुल बैकिंग विथ इग्नोरिंग व्हाट यू आर डूइंग एंड ओनली appreciating what you are going through and like the positives and backing you fully then I think you will be in the stage at least मेरे को तो लग रहा है आर्टेटा से पहले तुम ही जिता देते. So that is what no, like no pun intended, but this is what it is now. If the Uh, board has to back the manager has to do his thing and hopefully give the result. And by the end, both the club and the manager is in the right direction. That's what we all fans want. So वही नहीं हो पा रहा मेरे क्लब से चेल्सी से वही नहीं हो पा रहा. नहीं, अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी हैं तो there's that ना कि what was Manchester United expecting of Amorim actually? Like last year when he came to the club, they were bottom 10, finished be 15th maybe. But this year, if you see them, they are not in a bad situation at all. Being top six, 3 points away from top four, whereas you played really well against all the maybe not City, but you played really well against Arsenal, Aston Villa, Liverpool, and Chelsea, and defeated Liverpool at Anfield and defeated Chelsea at home. Yes, and the Were first game with Manchester the United Arsenal was also management
That was an unlucky match, to be honest. But what I was saying, मैनचेस्टर yeah, yeah. यूनाइटेड मैनेजमेंट क्या उम्मीद कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से सीजन की? दे शुड बी इन टाइटल रेस. टू बी ऑनेस्ट, जिस सिचुएशन से इन्होंने मैच ड्रॉ किए, दे कुड हैव बीन इन टाइटल रेस, बट दैट्स ओवरस्टेपिंग कि मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड इज रेडी टू बी अ टाइटल कंटेंडर नाउ. And with Amorim gone, I don't see this club doing anything for the next 3 years again, unless तुम कोई एक बहुत बड़ा miracle कर दो. नो ट्रू ब्रो व्हाट यू सेड, मतलब बट यूनाइटेड का हम ये देख सकते हैं ना कि वो टर्मोइल से जा रही थी 5-6 साल उनका, मतलब यू काइंड नो लाइक, बट आई 10 स्टिल years का बिलीव team दैट, manager. yes, I still believe that after sacking Ten Hag, it was the right decision to take a young manager. I think मेरे को तो ये भी लग रहा था कि might be United are going to do a Arsenal, like they will bring a manager young and inexperienced. In let's be honest, Sporting में जीतना is not the, like you are not a legend for that. Even though he is a good manager, but it was like that only. तो मुझे तो लगा था कि अमरिम को at least they will give a time. और you मेरे know, हिसाब से it's the very biggest honest, plus bro. point of Just Amorim wait, bro. was. Just wait, bro. Just wait. If you will agree with me, मेरे हिसाब से if एमरिम को निकालना ही था ना, so then they are too late to sack एमरिम. Do you agree with me? Yeah, I agree. अगर सैक ही करना था मेन तो चीज ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था. नहीं तो तुमने टाइम दिया ही क्यों अभी मिड सीजन में? तुमने लाया भी था मिड सीजन में उसको पिछले साल, अभी फिर मिड सीजन में तुमने उसको निकाल दिया. अगर निकालना ही था तो स्टार्ट ऑफ द 5 6 7 games where the games that you can sack him and then new manager can come and take the club in a different direction. But वही चेल्सी वन में मैं थिंग आ लाइक रहा हूँ अभी. ब्रिंसबी के बाद अगर आपने एमरिम को निकाला होता तो मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज दैट्स हाउ बैड यूनाइटेड वर एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन. बट अब जब यूनाइटेड थोड़ा कुछ अच्छा कर रही है, they have a very good chance of playing in Champions League next season. I hope it goes in a nice way. The next guy is actually better than Amaram. But one thing which I always was standing behind Amaram, he was very young, 40 years. If you give him 5 years, that's a lot actually, a lot of time to learn a lot of things. So, like, what do you think of Chelsea and Manchester United management as of now? नो लाइक आई फर्स्ट कम टू यूनाइटेड. पहले यूनाइटेड के बारे में बोल देता हूँ. जिस मतलब Uh-huh. तुमने जो बोला ग्रिम्सबी के बाद, मैं तो आई विल से सम ऑफ द यूनाइटेड फैन, मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैन विल एग्री दैट यूरोपा लीग के बाद भी तुम सैक कर सकते थे. वो भी nobody will have that much of. And now, no, the point is na. Actually, the point is not about even Amorim not doing good. Then he is sacking. अभी पॉइंट क्या, अभी जो दोनों ही सैकिंग हुआ है मेरे को जितना लगता है, देयर दैट सैकिंग ऑफ द बोथ ऑफ द मैनेजर अमोरिम एंड मरेस्का आर नॉट बिकॉज ऑफ द गेम दैट दे आर हैविंग, द बिकॉज ऑफ द Falling off आइडियाज, the द management. कॉलिंग आउट द मैनेजमेंट. मतलब ये फॉल आउट ही हो रहा है. और ये फॉल आउट ऐसे भी नहीं कि एकदम नॉनसेंस फॉल आउट. जो मैनेजर ठीक ही बोल रहा है यार. मैं लाइक, अब तुम यूनाइट अमोरिम को मे भी ज़्यादा चाहिए था, प्लेयर्स कुछ अलग प्रोफाइल्स के चाहिए था, लेकिन उनको उसको मिला नहीं. एंड व्हाट ही सेड इन दोस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही समड अप at what manager and head coach is, which brings me to the point of Chelsea and Maresca, that he was appointed as a head coach. पहले पहले सब फैंस खुश हो रहे थे. उसने प्रूव भी करके दिखाया पहले ही सीजन में, फ्रॉम कमिंग फ्रॉम लेस्टर हमको टॉप 4 में लाना. उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप, यूरो कॉन्फ्रेंस लीग जिताना. लाइक अब तुम जिन कंपटीशन में थे वो जीतना, आउट ऑफ 3 कंपटीशन, आउट ऑफ 4 एक्चुअली, यू आर विनिंग 2 ऑफ देम Mhm. इन योर फर्स्ट सीजन. दैट इज वेरी गुड ब्रो. लाइक प्रीमियर लीग जीतना तो हमने उम्मीद भी नहीं किया था. उसने टॉप 4 में ला दिया हमें. बाकी दो दो फाइनल में पहुंचे.
once there was a great manager who said finals are played to be won, जो उसने करके दिखाया, and we are really like hoping that he will carry us like that. अभी जो हुआ उसने, पता नहीं, देखो दो सिनारियो बन रहे हैं फैंस की तरफ से भी, और ये पीआर स्टंट है मैनेजमेंट का, ये किया। मैनेजमेंट इज सेइंग दैट ही वाज फ्लर्टिंग विद मैन सिटीज मैनेजमेंट कि आई वांट जॉब। उसमें कितना सच है वो मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये होगा तो भी गलत था मारिस्का का साइड से, लेकिन मैं ये नहीं आई एम नहीं स्टिल साइडिंग मेरे विद द को जो समझ। मैनेजर एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि नहीं, एक सेकंड में बस ये बोलना चाहूंगा कि जब आपका मैनेजमेंट इतना खराब है, जब आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा, आप एक डिफेंडर मांग रहे हो, एक एक्सपीरियंस प्लेयर मांग रहे हो, आपको वो नहीं ला के दे सकता, तो फिर व्हाई वुडंट अ मैनेजर वांट टू गो समवेयर एल्स हु इज एक्चुअली विलिंग टू लिसन टू हिम? मैन सिटी को हम सब ने देखा है, दे लिसन टू पेप गार्डियोला, पेप गार्डियोला डिलीवर्स द रिजल्ट। एंड द वे मारेस्का अपने काम किया, मेरे हिसाब से इफ ही गोज टू मैन सिटी आफ्टर गार्डियोला, I think he will deliver stuff there as well. एग्जैक्टली ब्रो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मान लो अगर फ्लर्टिंग चल भी रही थी, मतलब with the another team's management and what, but you as a management you can say to the manager that मतलब अगर मारिस्का को जाना ही था, उसको तो पता है अभी वो अगर निकलेगा तो वो तो सिटी में जॉब मिलेगा नहीं। वो जॉब गारंटी भी तो नहीं है, पेप क्या पता एक्सटेंड कर जाए, पेप क्या पता जीत के वो बोले नहीं मुझे और करना है, एलेक्स फर्गूसन के पीछे लग जाए कि उसका आधा रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड तोड़ने लग जाए, तो वो तो मैंने, वो तो गारंटी जॉब थोड़ी था कि आज मैं चेल्सी से निकल जाता हूँ कल मेरे को जॉब मिल जाएगा सिटी वाला, वो भी नहीं था। वो तो तुम्हारा मैनेजमेंट की गलती है ना, तुमने निकाला। तुम तो ये कह सकते थे कि ठीक है भाई अगर तुझे सिटी ही जाना है तो ये सीज़न पूरा कर ले, फिर निकल जाइयो, क्योंकि ये सीज़न में वैसे भी अगर अभी छूटते हो तो सिटी थोड़ी ले लेगी, राइट? सिटी जॉब इज़ नॉट गारंटीड। So that Exactly. I don't think it's like from Mariska side की गलती होगी। सी मारिस्का को मैं पिछले 2-3 मैचेस में, लास्ट के 2-3 मैचेस में टोक सकता हूँ, बट उधर में भी न्यूज़ ये आ रहा है कि ऑर्डर्स आते थे ऊपर से मैनेजमेंट से कि इस प्लेयर को इतने मिनट्स देना चाहिए, इस प्लेयर को। यू कैन नॉट से ब्रो लाइक दिस टू अ मैनेजर और टू अ हेड कोच, जो भी मतलब मैनेजमेंट शुड नॉट डिसाइड हु नीड्स टू प्ले, हु नीड्स टू बी सब्स्टिट्यूटेड एट टाइमिंग्स भी सब्स्टिट्यूशन का ब्रो, they were discussed by the management, how वही is it है like कि जैसे possible? कि like we know what happened with Lucho and Chelsea. Take that was a good example of how Chelsea operates. लेकिन even if we think like लूचो को ले आती चेल्सी, फिर क्या? Do you think Lucho will listen to you? Lucho is a far more serious coach. तभी Lucho हो तभी गया, तो पेप उन्होंने मना गार्डियोला हो कर गया, दिया ब्रो। हांस फ्लिक हो गया, क्लॉप हो गया। These are very no nonsense player managers. उन्हें अगर पता चल गया उनको रिसोर्स नहीं मिल रहे, वो भले ही काम चला लेंगे, जैसे वो हांसी फ्लिक इज डूइंग स्टफ इन बार्सिलोना। बट अगर मैनेजमेंट उसके साथ ये सब जो अभी एमरएम या मरिस्का के साथ हुआ है, आप किसी बड़े मैनेजर को नहीं ला सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ स्टाइल ऑफ वर्किंग। आप ऊपर अपना स्टाइल डालेंगे तो दे विल लीव यू। सो हु आर यू गोना ब्रिंग? अगर आपको एक पपेट मैनेजर चाहिए तो फिर यू बिकम अ टीम लाइक व्हाट यू से क्रिस्टल पैलेस और न्यूकासल, जो कभी वंस इन अ वाइल Right, yeah. पहुंच गए चैंपियंस लीग में तो हो गया, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर जस्ट मिड टेबल टीम्स। एग्जैक्टली ब्रो, मतलब व्हाट यू सेड इज राइट ओनली, मतलब लूचो, तभी उन्होंने लूचो को रिजेक्ट कर दिया ना ऑन द स्पॉट, क्योंकि उनको पता है भाई एक मैनेजर, टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास मैनेजर अगर पीपीटी लेके आ रहा है तो दैट मैनेजर इज समथिंग, राइट? तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो समथिंग, समथिंग दैट डोंट अलाइन विद द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाट आई एम, मतलब I am out of capacity right now to think what this club is going in which direction. Like मुझे पता नहीं चल रहा है, and I don't know, I need opinions, I need someone to tell me what is going on, because मैं तो जिधर भी मैं हाइंडसाइट लगा के जो भी लगा के देख सकता हूँ, I am not seeing which direction this club wants to get. Do they want to win or do they want to just
become a feeder club. Even if a feeder club also wants to win, bro, they don't come with the manager and they don't discuss which player should play, which player should substitute it. So that's why this is very new to me and very devastated that it's happening with my club. तो सेम गोज़ टू मैन यूनाइटेड। मैन यूनाइटेड स्कीम थोड़ा-सा चेंज होगा बट ऑन द एट द एंड दोनों मैनेजर्स एक हुए कॉल आउट करने के लिए, क्लैश, फॉल आउट जो भी कहो, व्हिच शुडन्ट बी हैपनिंग Like इन द फर्स्ट प्लेस। both both management want a puppet manager जो वो हाँ करने बोले तो they say yes, they say if they say no he agrees and says no। उस तरह आप बड़े क्लब्स को नहीं चला सकते। एग्ज़ैक्टली ब्रो। दिस इज़ नॉट लाइक सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा ना उसमें फिर तो टू लाइक सस्टेन द ग्रोथ, टू सस्टेन द टाइटल्स, टू सस्टेन द पोजीशंस। फिर तो ये मतलब नेटवर्किंग क्लब बन गया, फीडर क्लब बन गया, प्लेयर के लिए स्टेपिंग स्टोन क्लब बन गया कि इधर आए, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, फिर अच्छा खेल लिए, फिर दूसरे क्लब में चले गए। हिस्ट्री मेकर नहीं बनेंगे फिर तो ऐसे क्लब चलेगा तो। आ, सब पुतिन की गलती है चेल्सी की है। अब क्या ही बोलूँ, गुस्सा भी आ रहा है मुझे उसी के ऊपर। अगर वो सैंक्शन नहीं होते तो आज मेरे को तो लग रहा था अगर वो सैंक्शन नहीं होते तो तुखल एक प्रीमियर लीग तो दिला ही देता। Tuchel had the capabilities। अब एग्जैक्टली। क्या ही बोला जा सकता। टूखल नहीं, आप टूखल को ही निकाल दिए, आप ग्राहम पॉटर जैसे इंसान को नहीं लाते। अगर आप मरेस्को को भी लाते तो शायद कुछ टाइम तो देता उसको। एंड आफ्टर विनिंग टू ट्रॉफी आई डोंट थिंक सो मिड सीजन नो, सैकिंग ऑफ फ्रॉम एक्चुअली पोजीशन। Mariska did और in the first season what he's been told, and he delivered. Then he thought I can deliver more with the my thoughts also. So उसने एक दो चीजें मांगे होंगे, डिफेंडर, एक मिडफील्डर, तो वही वही उनके मैच नहीं हो रहे तो जब ड्रॉप पॉइंट्स होते तो उनको गुस्सा आता है मैनेजमेंट को, तो फिर तुम प्लेयर्स नहीं दोगे और पॉइंट्स ड्रॉप होंगे तो होगा ही ना ये सब ब्रो। वही है। सो क्या लगता है लाइक चेल्सी का जो शुड चेल्सी गेट टेन हाग ब्रो, रिप्लेस हिम विद अ No, बार्ड no. मैनेजर। Actually, what I'm seeing in, I understand, but uh, almost is done हो गया शायद, पता नहीं that स्टार ब्रुक का जो मैनेजर है, क्योंकि स्टार ब्रुक या भी अनदर यंग क्लियर गाय। लेग, हाँ क्लियर लेग कैपिटल का ही क्लब है वो, मतलब सीडिंग सीडिंग क्लब है वो भी चेल्सी के ओनर्स के, तो वो उधर से ही सर ये घपला कर रहे हैं, सब समझ आता है, प्लेयर्स भी ऐसे ही करते हैं वो लोग। तो वही उन तो वही मैनेजर आ रहा है मेरे को लग रहा है, ही इज़ इन लंदन ऑलरेडी, कुछ न्यूज़ पढ़ा था मैं। सो आई थिंक बाय द नेक्स्ट 2-3 गेम्स के अंदर या फिर नेक्स्ट गेम में भी ही माइट बी इन चार्ज, आई डोंट नो। And what सो about Man United? Who do you think they will get? Will यूनाइटेड like इज अ डिफरेंट O- केस, दे डोंट हैव Ole अ gonna सीडिंग क्लब। ओले जैसा कोई एक फिर से क्यों नहीं केस होगा जो जून तक आएगा बट ही विल स्टे फॉर इयर्स। और दे विल ट्राई टू गेट इफ समवन दैट लाइक हैपेंस, Inzaghi इन जून। इफ दैट But हैपेंस, from what I read, Fletcher is gonna take charge of the club for Burnley। क्योंकि यूनाइटेड का केस यहाँ डिफरेंट हो जाता है, यूनाइटेड के पास सीडिंग क्लब नहीं है कि वहाँ से यहाँ उठा दे, और वो ये यंग वगैरह के पीछे जाते नहीं है, उनका फिलोसफी अलग है। तो मुझे लग रहा है कोई भी आ जाएगा इंटरिम के लिए, फिर वो दे विल गो विद द लाइक्स ऑफ जावी, जिडान, दे विल अप्रोच एटलीस्ट, they will approach few manager, Postecoglou also I think so. पोस्टकोग्लू के पास तो शायद नहीं जाए अभी कोई भी क्लब। Nuno is a good chance for United Nuno also. is good, or season can be you can get someone like Ariola। Yeah, Mino Ariola, right.
Yeah, That also is good. But I think United, if United are doing what they are doing with Amorim, like puppet का तरह, तो I think they will go with an inexperienced manager again. कोई चैंपियनशिप से उठा देंगे या फिर कोई मिड टेबल से उठा देंगे, तो the way like Bournemouth is playing, I think maybe they will sign, they, what do you say, they will call up Rooney to take in charge. What do you think? Wayne Rooney. Rooney was terrible with the derby, तो नहीं बुलाया तो अच्छा है क्लब के लिए भी। But or do you think this is more likely to happen, bro? Maybe. Do you think Southgate coming? He's a puppeteer also, like England FA. वो तो आ तो सकता है बट लेट्स सी, वी विल मुझे सी लग रहा है वो सम अदर साउथगेट को, फॉर्म। मुझे लग ही रहा है वो साउथगेट को जाएंगे अगर उनको यस मैन चाहिए, क्योंकि साउथगेट ना ही कोई टैक्टिक्स वगैरह है उसके पास, वो बस फॉर्मेशन अच्छा खिला देगा और बोल देगा कि काउंटर पे मारो। और मुझे लग रहा है साउथगेट आएगा तो राशफोर्ड भी वापस आ ही जाएगा यूनाइटेड में, और फिर उनको कोई साइन इन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, जो है उसी से काम चला लेगा साउथगेट 1-2 साल। वही मिड टेबल क्लैश चलता रहेगा चेल्सी यूनाइटेड का। बैटल ऑफ द बाकी क्लाउन्स। आर्सेनल, बैटल ऑफ द क्लाउन्स, बाकी सबसे बड़े क्लाउन्स आर्सेनल जीत जाएंगे हाल फिलहाल में, कभी चैंपियंस लीग कभी प्रीमियर लीग। फिर हम लोग को शक्ल दिखाने लायक हम लोग नहीं रहेंगे, नॉट बिकॉज वी हैव लूज, बिकॉज दे हैव वन, बिकॉज दे आर द वर्स्ट फैन। सॉरी, आई लव आर्सेनल फुटबॉलिंग स्टाइल, I do troll them, but the football they are playing is highly addictive and appreciated. But the fans I is admire a lot of unbearable. players in Arsenal as well. Even I admire Arteta because of his growth. I am telling you, if a manager, not manager, if you, I will send you to Arsenal and I will say, go have 6-7 years of experience there. Even you will be a decent manager, more than decent, actually. So that's what the management need to do, bro. They need to back up their management. They need to take the risk of not winning things in years, but to go and go to the right direction, like City has done in one point, and now they are having the success, the fruit of it. So, pata nahi, bro. I cannot. I think we should end the discussion here. I cannot see where these two clubs are going forward. I just want, because if you say चेल्सी भी वो रोजेनरी आ जाएगा, उसको भी वही बोलेगा, वो थोड़ा सा अच्छा कर देगा, फिर से उम्मीद आ जाएगा, फिर 2-3 ऑन द स्पॉट गेम हार जाएंगे, और बस वही फिर New से कॉल आउट manager हो is जाएगा, gonna फिर से pull सैक out हो जाएगा। Robert Di Matteo. सी चेल्सी का सैकिंग चेल्सी के नेचर में है, बट द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट राइट नाउ। पहले जो सैक करता था भाई, वो हेलीकॉप्टर में आके सीधा उड़ा के जाता था ताकि बेटरमेंट ऑफ फुटबॉल हो। यहाँ फुटबॉल को उड़ा दिया जा रहा है मैनेजर के साथ, तो क्या ही बोलूँ। Do you think there's a possibility of happening Robert Di Matteo? पॉसिबिलिटी है बिकॉज इट इज चैंपियनशिप, बट आई डोंट सी, लाइक 1% चांस दूंगा, बट आई डोंट सी चेल्सी विनिंग with this management even one Premier League title. Even if Cole Palmer, Colville, Sanchez, Reece James, Kukurea, Caicedo will reach their peak also, this because of this management, these guys will not win Premier League, and these guys will eventually go to big clubs and do good for themselves. If I was these players, मैं नहीं चाहता, but if I was these players, I will go next year itself. Okay, Seriously, bro, तुम्हारे दिल पे बहुत बीत रही है तो let's stop the video today. yes, bro. I can't take it anymore. This shitty. आई So आज पहले बार काफी दिन बाद एंग्री रेनपेंट का वीडियो देखने का मन कर रहा है, rip to him, बिकॉज rip to our यस, goat. रिप टू आवर गॉड। सो विद दिस, shall we end this discussion, bro? We'll take a fresh Yes, start and tomorrow. before we end, I would like to We need wish all to, our
viewers a happy new year, and I hope your club Happy New Year. does Happy something New good. And as a broke Barcelona fan, I know my club isn't giving me any good players. But you guys are winning, bro. So chill, chill. I will say chill. 4 points I का know, लीड है but क्या ही करोगे बस एक ही winning La कंपटीशन Liga, है आई सी वो अलग बात है आई ना। 10 सालों आई कैन से से चैंपियंस लीग नहीं जीतने का दर्द कैसे समझाऊं। चैंपियंस लीग का मैं समझ सकता हूँ बट आई कैन मैं से भूल भी दैट चुका हूँ कि चैंपियंस लीग जीतना लगता कैसा है। एग्जैक्टली ब्रो but I think just on a quick note I think the La Liga is now depend on the next El Clasico 4 points का लीड है बार्सिलोना के पास अगर जीतेगी तो पक्की हो जाएगी टाइटल अगर हारेगी तो फिर मड्रिड एंड लक ये दोनों हैंड इन हैंड चलता है इवन दो आई वांट मैड्रिड टू विन Madrid बट is आई a कैन miracle club. एग्जैक्टली ब्रो but I think this El Clasico will have lot of stake in it. So with this, I would like to end this stream and wish you all happy New Year, like my friend just said. And I think we'll continue this discussion of sacking manager again in the next video with the games that happened this week and the tables and all how it's going. So see you guys soon. Stay blessed. Bye Happy New everyone. Year once again. Good night. Happy New Year.